This conference will now be recorded. Hello and good afternoon, everyone. Our requested and respected speaker is also there. I welcome him as well in this next session of our ongoing seminar. We are highly obliged and privileged to have a guest speaker of his stature, Professor Dr. Subhash Wadodkar sir, as our speaker today. He is one of the foremost experts of Ayurveda, leading academician, physician, and researcher in the field of Ayurveda. He was an ex-professor and head of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana Vibhag at Dr. D.Y. Patil College of Ayurveda Research Center, Nerul, also at Tirak Ayurveda Mahavidyalaya, Pune. He is presently working as a professor and HOD at Government Ayurveda College, Jalgaon, after achieving MD and MD in Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, also completed his BA in Sanskrit. He is also awarded PhD from Nagpur University, has completed Master Diploma in Journalism from ICA Jalgaon for social purpose. He has established Mira Ayurvedilaya Panchakarma Chikitsalaya and Research Center, Diabetes and Skin Care Center at Jalgaon, which offers unique Ayurveda and Panchakarma treatment since the last 30 years. He has organized many international and national seminars on Ayurveda and yoga. He has been a thorough personality on many television and radio interview shows as well, spreading his knowledge worldwide. Recently, he has presented research paper on swine flu and Ayurvedic remedy in International Ayurveda Congress at Roermond, the Netherlands. Dr. Subhash sir has worked in several medical, educational and social work projects as a member and past president of Rotary Club of Jalgaon, Gold City. He is founder of Dr. Wadodkar Medical Foundation to work extensively for the help of needy and poor people by organizing several health camps on various ailments, including jaundice and chikitsa shibirs on various topics. Sir has also conducted workshops and guidance program in preparation of homely Ayurvedic medicines along with Chawanprash Karyashala, a unique thing of Dr. Wadodkar for skill development of all the ongoing and budding practitioners. Nirmalyatun Arogya is a unique project taken by Dr. Wadodkar on every year of collection of Nirmalya, that is Patri from various leaves of various plants, and to prepare various home medicines by drying them and afterwards distributed to the needy people. Sir has been awarded extensively for his research work in the field of Ayurveda, recognized by various prestigious awards like Dattatreya Shastri Kavishkar Gold Medal, Nagarjun Silver Medal, Professional Excellence Award, Shri Baidyanath Dhanvantari Award, Best Papered Award, International Scholar of 20th Century Award, and many more to come. So, an elite speaker we have received today, and we are obliged to hear from him today. His topic today is Asav Arishta Kalpana. I'll request Vaidya Dr. Subhash Wadodkar sir to kindly start his lecture. Thank you very much. धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, आशावादिष्ट कल्पना के ऊपर अभी 2 दिन पहले डॉक्टर अभय का लेक्चर हो चुका है। उस दिन मैं ज़्यादा ज्वाइन जल्दी नहीं हो सका, इसलिए मैं ज़्यादा सुन नहीं सका। मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आज यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा आवाज़ सब सुन सकते हैं? Yes, sir, audible. ओके, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं यहाँ ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर वैद्य को औषधि निर्माण आना ही चाहिए, ऐसा मेरा कंसेप्ट है। और मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताता हूँ कि आप औषधि निर्माण में कम से कम माहिर होनी चाहिए। और इसमें जो जो विद्यार्थियों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनको औषधि निर्माण की जो 3 पॉइंट्स, जिसको हम बारकाई या कहते हैं, विया कहते हैं, वो मैं हमेशा बताता हूँ। और मेरे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट आते हैं। लास्ट 10 ईयर्स से आशा रिश्ते के ऊपर मैंने स्पेशली काम करना शुरू किया, और ये मैंने देखा कि इसमें काफ़ी
वर्क करना जरूरी है। और सिंस लास्ट 10 ईयर्स इसके ऊपर जो भी मैंने काम किया उसका एक ब्रीफ यहाँ पे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ऐसा देखे जाए तो आशावरिष्ठ कल्पना ये काफी पुरानी ने, हम कह सकते हैं कि सिंस टाइम इमेमोरियल में जब से याद है तब से हम आशावरिष्ठ बनाते हैं। उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। पहले मध्य कल्पना के स्वरूप में हो सकता है इसका आविष्कार हुआ हो। हम वेदों में यदि देखेंगे तो सोम रस या उसके सदी का कोई कल्प इसमें आशावरिष्ठ की दृष्टि से इसमें मध्य निर्माण होता होगा, ऐसा कल्पों का काफी वर्णन मिलता है। और जब हम औषधि निर्माण की दृष्टि से यदि देखेंगे तो संहिता काल से हम आशावरिष्ठ अच्छी तरह से निर्माण करते आ रहे हैं। तो आशावरिष्ठ कल्पना को ही संधान कल्पना, मध्य कल्पना ऐसा हम कहते हैं, और इसी दृष्टि से हमें ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुराणस्य गुणेर युक्ता आसवो धातु रसः, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है और ये वास्तव भी है। इसका कारण यह है कि जो जितना पुराना उतना गुणकारी, यह कंसेप्ट पर्टिकुलरली आसव अरिष्ट के ऊपर और धातुओं के ऊपर हम देखते हैं। जो पुराने हो गए उतना उसका कार्यकारी तत्व अच्छा रहेगा, वो स्टेबल रहेगा और उतना ही गुणकारी रहेगा। इसीलिए पुराण से गुणेर युक्ता, उसमें सबसे पहले नाम आसव का है, फिर धातु, कहीं आसवो धातु रसा है तो कहीं आसवो धातु मता है। तो इस कल्प को काफी समय तक वीर्यवान रहने के कारण ही यह काफी कह सकते कि इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति। अब ये कल्प कैसे ज्यादा करके प्रचलित हुआ, तो चरक संहिता काल से हम यदि देखेंगे तो वैशिष्ट्य कल्पना के अंतर्गत जो पंचविध कषाय कल्पना है उसमें क्वाथ और स्वरस का जब हम वर्णन देखते हैं तो इन दोनों कल्पनाओं की सवीर्यता अवधि अत्यंत अल्प है। और ये अवधि जब बढ़ाने का हमने देखा कि जो ग्रंथकारों ने कोशिश की तो उसका आविष्कार या परिवर्तित कल्पना का स्वरूप आज हम आशावरिष्ठ की दृष्टि से स्वरूप में आज देखते हैं। तो नेक्स्ट, हाँ, यदि हम संधान कल्पना के तरफ यदि देखेंगे तो ये एक काफी चीजों का एक एकत्रीकरण है, यानी संधान है। सब चीजों को एक पर्टिकुलर दृष्टि से या पर्टिकुलर फिनोमिना से हमें एक जगह पे लाना है और उसको सभी को एक दूसरे ही नए फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसे संधान कहते हैं। ये ज्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जाना यहाँ उचित नहीं समझता हूँ। तो संधान कल्पना के यदि घटक हम देखेंगे तो उसमें है सबसे पहले काष्ठौषधि, जिसमें जो अलग अलग शुष्क द्रव्य आते हैं जिनका हम काढ़ा बनाते हैं, वो सभी द्रव्य इसमें आते हैं। और दूसरा है आर्द्र वनस्पति या फल का रस, जिनको हम डायरेक्ट आर्द्र स्वरूप में उसका रस निकाल के आशावरिष्ठ बनाने के लिए यूज करते हैं। तो जो हम आशावरिष्ठ बनाने वाले हैं उसके लिए जो द्रव्य लेंगे वो वीर्यवान होना चाहिए, और जैसा कि हमारे द्रव्य संग्रहण और द्रव्य ग्रहण का जो नियम है उस हिसाब से वो द्रव्य होना चाहिए, यानी ग्राह्य द्रव्य होना चाहिए। उसके बाद में आर्द्र वनस्पति जो फल लेंगे या वनस्पति का स्वरस लेंगे वो भी प्रॉपर रसवीर्य विपाक से परिपूर्ण होना चाहिए। ये सिलेक्शन ऑफ द ड्रग हमारा प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हमारा एंड प्रोडक्ट काफी अच्छा निकल आए। अब जब हम काष्ठौषधि की बात करते हैं तो हम उसका क्वाथ बनाते हैं। तो क्वाथ बनाने का भी अलग अलग तरीका हमारे ग्रंथों में बताया कि जिसमें हमें अलग द्रव्यों के हिसाब से अलग अलग पानी लेके अलग प्रमाण में उसको रिड्यूस करना पड़ता है। और ये क्वाथ की परिभाषा यहाँ बताने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि उन सभी परिभाषाओं का उपयोग करके द्रव्य के हिसाब से हमें क्वाथ निर्माण करना जरूरी है। तो ये क्वाथ यहाँ तक जो चीज होगी कि हमारे पास एक क्वालिटी ऑफ क्वाथ या काढ़ा या फ्लूइड या सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस हमारे पास आ गया है, जिसमें स्वरस भी हो सकता है या क्वाथ भी हो सकता है। इन्हें पहला जो घटक है क्वाथ, ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद में जब हम क्वाथ बनाते हैं, जब हम
आश्वारिष्ट बनाते तो उसके फेल्योर के पीछे यदि हम देखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर में फेल्योर्स कैसे होते हैं और उसको ओवरकम कैसा करना है, इसके ऊपर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। जब हम क्वाथ बनाते हैं तो जो पानी का सोर्स है वो किस तरीका है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जो जल की मात्रा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसकी शुद्धता कैसी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो पानी हम यूज करेंगे वो यदि हार्ड वाटर होगा तो डेफिनेटली आशावादिष्ट के ऊपर उसका बुरा असर होगा। उसमें कुछ ऐसी द्रव्य होगी जैसा कि सल्फर का प्रमाण ज़्यादा होगा या फॉस्फेट का प्रमाण ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि उससे आपका आशावादिष्ट अच्छी तरह से बनने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जल की शुद्धता के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि वाटर सॉफ्टनर बहुत सारे मिलते हैं या फिर वाटर प्यूरिफायर्स मिलते हैं। वो वाटर प्यूरिफायर्स यदि हम यूज़ करके उससे परिशुद्ध जल यदि लेंगे तो हमारा जो पानी के द्वारा आशावादिष्ट को प्रॉब्लम आने वाला जो फैक्टर है वो हम रूल आउट कर सकते हैं और पानी हम शुद्ध स्वरूप का ले सकते हैं। शुद्ध स्वरूप का पानी लेकर फिर उससे हम क्वाथ बना के हम फाइनल क्वाथ का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में है संधान पात्र। जैसा कि हम ग्रंथों में देखते हैं कि मृत्तिका पात्र बताया है लेने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसमें खामियां हैं क्योंकि वो पोरस होता है, उसमें से बहुत सारा क्वाथ या ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद में उसकी लाइफ बहुत कम होती है, हैंडलिंग में प्रॉब्लम्स रहते हैं और उसके बाद में वो ब्रेक भी हो सकता है। आश्वरिष्ट प्रोसीजर जब चालू होती है तो उसमें पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड या गैस तैयार होता है, उसका प्रेशर भी काफी रहता है। इन सब चीजों को यदि हम देखेंगे तो मृत्यु का पात्र आज के जमाने में तो आउटडेटेड हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर भी कुछ जगहों पे हम उसका छोटे मात्रा में यदि करना होगा तो उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी में हम करने का तो कर सकते हैं, लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी में हमें करना है तो ये सूटेबल नहीं है। उसके बाद में आता है लकड़ी के ड्रम, जिसमें ओक ट्री या सागवान का ट्री, इनके ढोल जो रहते हैं वो पर्टिकुलर शेप में बनाए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी औषधि निर्माण कंपनियों में ऐसे ढोल या ड्रम्स रखे हुए रहते हैं जिनमें आशावारिष्ट बनाया जाता है। अब ये काफी साल पुरानी बात हो गई कि ऐसे ढोल यूज करते थे, लेकिन आज इसमें परिवर्तन आ गए हैं। इसका कारण ये है कि लकड़ी के जो ड्रम रहते हैं उनको साफ करने में दिक्कत आती है, उनका प्रॉपरली सैनिटाइजेशन नहीं कर सकते हैं और किया भी तो उसमें कुछ रेसिडुअल फैक्टर्स जो उसमें एब्जॉर्ब किए जाते हैं लकड़ी में, वो नेक्स्ट जो आशावारिष्ट का पार्ट हम लगाएंगे उसमें आ सकते हैं और जिससे कि उसका क्वालिटी को डाउन कर सकते हैं। कुछ हद तक लकड़ी के ड्रम ये अभी वैसे देखे जाए तो ये भी पीछे पड़ गए हैं। तो इसमें सफाई की भी दिक्कत रहती है, जिससे सैनिटाइजेशन या स्टरलाइजेशन इसका प्रॉपरली हम नहीं कर सकते या करने में दिक्कत जाती है ऐसा करते। कुछ हमने देखे हमारे स्टूडेंट लाइफ में कि कई कंपनियों में सीमेंट के टैंक्स बने हुए देखे या सीमेंट की टंकियां रहती थी और वो टंकियों में आशावारिष्ट वो बनाते थे। और जैसा कि हम कहते हैं कि इसमें एक्सपोजर टू एयर ज़्यादा रहता है ऐसे टंकियों में, तो वहाँ कंटेमिनेशन भी बढ़ता है और आशावारिष्ट खराब होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा रहते हैं और हम देखते हैं कि फंगस भी काफ़ी मात्रा में वहाँ आता है। तो इसमें उपसर्ग होने का डर ज़्यादा रहता है और इसलिए ये टंकियाँ भी आउटडेटेड हो गई है। इसके अलावा प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी टंकियाँ भी आजकल हम देखते हैं, जैसे सिंटेक्स की वगैरह ऐसी टंकियाँ आजकल यूज़ में आने लगी है और वो उपयोग में लेकर आश्वरिष्ट कई कंपनियाँ बना रही है। तो उसमें फूड ग्रेड की टंकियाँ या है या नहीं ये देखना सबसे ज़रूरी है और वो यदि होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की कोठियाँ या बर्तन हम देख सकते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है और इसमें स्टेनलेस स्टील होने की वजह से किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन मटेरियल में नहीं होता और आश्वरिष्ट बनता है। लेकिन ये कोठियाँ यदि हम देखेंगे तो इसका मुंह बड़ा रहता है और मुंह बड़ा रहने से क्या होता है कि जब भी हम आशावारिष्ट को देखने के लिए खोलते हैं कि क्या उसकी स्टेज है, कैसी कंडीशन है, तो एक्सपोजर टू एयर ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है और एक्सपोजर टू एयर यदि आशावारिष्ट ज़्यादा बार हुआ तो उसमें कॉन्टेमिनेशन हो सकता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वहाँ पे अलग अलग प्रकार की फंगाई ग्रो होने लगती है और आशावारिष्ट स्पॉइल हो सकता है। इसलिए बड़ी मुंह वाली कोठियाँ भी यहाँ लेना ये हितावह नहीं है या एक्सपेक्टेड नहीं है। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं तो
अलग अलग प्रकार की कांच की हंडिया जिसको कार्बाइड भी कहते हैं, वो हम हमारे लेवल पे यदि आश्वरिष्ट बनाने का होगा तो वो ले सकते हैं। या फिर आज जो पानी की कैंस आती है 20-20 लीटर वाली, ऐसी कैंस मोस्ट कन्वीनियंट है जो फूड ग्रेड प्लास्टिक की रहती है, जिसपे 15-20 दिन आश्वरिष्ट रखा तो उसका कोई इमीडिएट बैड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसी जो वाटर कैंस है उसका उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। इसके पीछे एक रीजन ऐसा है कि ये 90% क्लोज रहता है, 10% इसका मुंह जो छोटा है वो 10% एरिया ओपन रहता है, और इसकी वजह से इसका कॉन्टैक्ट टू एयर, हवा से इसका संपर्क बहुत कम होता है। संधान ये नाम ही इसलिए आया है कि इसको सब फॉर्मूले को एक जगह जमा करो और उसको सील कर दो, पैक कर दो, और उसके बाद में 1 महीना, 1.5 महीना या 15 दिन, 20 दिन, जो भी ड्यूरेशन पार्ट के सबसे बताए उसके बाद उसको खोलो। और इसीलिए हमें ऐसा इस प्रकार से जब बनाते थे तो हमें सब चीज़ों को एक करके उसको सील करके रख देना पड़ता था, और जब फाइनल ड्यूरेशन खत्म होने के बाद जब हम खोलते थे तो हमारे सामने क्या आएगा इसका कोई भी जजमेंट हम नहीं कर सकते थे। और इसलिए फिर ये मैंने कह सकते कि भगवान भरोसे हमें वो पूरा पार्ट जो है भगवान भरोसे छोड़ देना पड़ता था, उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका जस्टिफिकेशन बहुत बार करना डिफिकल्ट जाता था। इसलिए वो जो प्रकार है उससे दिक्कत बहुत जाती है। आज हम ऐसी वाटर कैंस को यूज करने के बाद ये भी देख सकते हैं कि प्रॉपर फर्मेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कांच की तो यूज करती है, वो रिकमेंडेबल है, लेकिन उसमें वो मिलने की भी दिक्कत जाती है, और मिलेगी तो उसका हैंडलिंग डिफिकल्ट है, और फूट जाने की शक्यता ज़्यादा है। इसलिए प्लास्टिक कैंस जो पानी के, वो आज के ज़माने में हम घर में यदि करेंगे तो दैट इज़ द आइडियल वन, और उसको हम प्रॉपरली स्टर कर सकते हैं बिना ओपन किए, और उसमें से जो गैस है वो अब छोटे मुंह से बाहर निकल जाएगा, तो उसमें एयर कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा। इसके बाद में आज मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल कंपनी या जो भी फर्मेंटेशन करने वाली कंपनियां हैं वहाँ फर्मेंटर यूज किया जाता है। ये फर्मेंटर इज आइडियल थिंग इन टूडेज इरा। जैसे कि हम देखते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील से बना रहता है। फर्मेंटेशन की जो भी विविध क्रियाएं होती है, जैसे उसको गैस का लिबरेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, अल्कोहल का पर्टिकुलर लेवल तक वो बढ़ते रहता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए उसका टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आजकल स्टेनलेस स्टील के फर्मेंटर्स मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, जिसकी कैपेसिटी अलग अलग रहती है, जो हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं, और ये आइडियल है। इसमें सब जो भी चीज़ें हमने कही वो सब चीज़ों को यहाँ रूल आउट करके ये आइडियल फर्मेंटर हमें मिल सकता है आज। उसके बाद में हम देखते हैं कि पात्र के अलावा नेक्स्ट चीज आती है मधुर द्रव्य। यहाँ जरा डिस्कशन ज्यादा करना जरूरी है। आस्वारिष्टों में मधुर द्रव्य ज्यादा करके गुड़ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में शक्कर का उपयोग किया जाता है, उसको भी सीता कहते हैं, और मधु का उपयोग किया जाता है। और हम देखेंगे तो मैक्सिमम गुड़ का उपयोग किया जाता है। उसमें भी नया गुड़ एवं पुराना गुड़, ऐसे दो कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि पुराना गुड़ होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से फर्मेंटेशन कराता है, और ज़्यादा अच्छा आस्वादिष्ट बनता है। लेकिन इसके ऊपर यदि हमने ध्यान देने के बाद ऐसा समझ में आया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि पुराना बोले तो कितना पुराना, 3 साल से ज्यादा पुराना गुड़ यदि लेंगे तो उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। और दूसरी बात है कि पुराना गुड़ यानी काला गुड़ हो गया है, जिसको एक टिपिकल स्मेल आ रहा है, उससे बदबू कह सकते हैं, या एक सेल्फ फर्मेंटेशन या फंगस डेवलप होने के बाद जो स्मेल आती है वो हो गया है, ऐसा गुड़ पुराना है और उसको यूज करना है, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। हमने देखे कि काफी कंपनियों में टनों से गुड़ जमा करके रखते हैं, और एक कोने में एक स्टोरेज में वो रखा रहता है, उसका प्रॉपरली केयर नहीं ली जाती, तो उसको काफी मात्रा में फंगस बढ़ने लगता है, वो पिघलता है, पानी हो जाता है, और स्टिल वी आर यूजिंग द सेम जैगरी। ऐसे गुड़ को यूज करते हैं, फिर उसके अलग अलग परिणाम हमें आस्वादिष्ट के ऊपर दिखते हैं। इसलिए पुराना गुड़ हो या नया गुड़ हो, 2 साल के ऊपर का नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल, उससे ऊपर का गुड़ नहीं लेना चाहिए। और वो भी प्रॉपर हाइजीन से रखा हुआ गुड़ होना चाहिए। उसमें भी अनहाइजेनिक कंडीशन से भी दिखते होंगे तो ऐसा गुड़
यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा गुड़ ही आशावारिष्ट को स्पॉइल करने का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है। और इसीलिए अच्छा गुड़ देना चाहिए। खराब आशावारिष्ट को खराब करने की महत्वपूर्ण भूमिका गुड़ निभाता है। और फिर हम ढूंढते रहते कि मैंने तो सब चीजें अच्छी की, ग्रंथ में बताया वैसा ही किया है, और फिर भी ये मेरा आशावारिष्ट क्यों खराब हो गया है। इसके पीछे जो एक रीजन है, वो प्रॉपर तरीके से गुड़ को हमने नहीं लिया और अच्छे क्वालिटी का नहीं लिया, तो इसमें कॉन्टेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारा आशावारिष्ट खराब हो सकता है। अब गुड़ और शर्करा का उपयोग करने का मेरा अपना तरीका है। जैसे कि ग्रंथ में लिखा है कि काढ़ा बनाने के बाद उसमें गुड़ डालो, और गुड़ डालने के बाद सभी चीजों को एकत्र करके संधान पात्र में डाल के उसको सील करके रख दो। एक छोटे सेंटेंस में ये बातें कही गई है। इससे हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन इसमें यदि हमने काढ़ा लिया, उसको ठंडा होने दिया, ठंडा होने के बाद उसमें गुड़ डाला, उसको गुड़ डाल के उसको अच्छे से उसको स्टर करके घुल जाए, उसके बाद में हम उसको रख भी दिया, तो भी गुड़ में कुछ जो कॉन्टेमिनेंट्स है वो उसमें आ जाते हैं। इसलिए मैं इसके लिए एक सिंपल चीज करता हूँ। जब काढ़ा बनाते हैं तो काढ़ा जब बन जाता है, उबलते उबलते उसका जो रिडक्शन हमें करना है वहां तक जब वो आ जाता है, तब उसको हम छान लेते हैं। और छानने के बाद उसमें जो गुड़ डालते हैं वो गरम गरम काढ़े में ही डालते हैं, और गरम रहता है तभी हम उसको डिसॉल्व कर लेते हैं पूरे काढ़े में। यानी वो गुड़ स्टरलाइज हो जाता है। उसमें से जो आने वाली पायरोजेंस है या कुछ फंगस है या कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, इसको हम एक प्रकार से स्टरलाइज कर लेते हैं। और वो पूरा काढ़ा गुड़ डालने के बाद गुड़ की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए वो काढ़ा काफी देर तक गर्म रहता है, और कुछ घंटों के बाद वो धीरे 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 ठंडा होता है या गुनगुना होता है। एक पर्टिकुलर 30 टू 32 या मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ये काढ़ा आ जाएगा, तभी उसे संधान के लिए हमें यूज करना है। सेम प्रोसीजर शर्करा के लिए। शर्करा भी हम काढ़े में ये डालना है या स्वरस में डालना है, तो जब आसव करते हैं तो स्वरस को उबालते नहीं है, लेकिन शक्कर का घोल हमें स्टरलाइज करके लेना है। थोड़े से पानी में शक्कर डाल के उसको डाइल्यूट करके उसको थोड़ा उबाल लेने का है। फिर वो आसव के स्वरस बोलो या फ्रूट जूस बोलो जिसमें हमने डालना है, जैसा कि द्राक्ष का रस होगा या और किसी चीज का, तो उसमें डालना है। इससे ने शर्करा का जो कॉन्टेमिनेशन का सोर्स है वो हट जाएगा। तो एन केन प्रकारेण हमें आशावारिष्ट में कॉन्टेमिनेंट्स नहीं जाए, इसकी तरफ ध्यान देना, ये पहली बात ख्याल में रखना चाहिए। तो गुड़ और शर्करा इस दृष्टि से हम स्टरलाइज करके हम आशावारिष्ट में यूज कर सकते हैं। मध के बारे में हम ये कह सकते हैं कि समझो आपने वाइल्ड हनी लिया है, जंगल में जाके जमा किया हुआ मध लिया है, तो उसको आप 60 टू 70 डिग्री तक इनडायरेक्ट हीट देके गर्म करके फिर यूज कर सकते हैं। या फिर हमने किसी कंपनी का मध यदि लिया है तो वो ऑलरेडी स्टरलाइज बोलो या उसमें पायरोजेंस फ्री ऐसा वो हनी रहता है, तो उसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया मधुर द्रव्य आशावारिष्ट में, पर्टिकुलरली काढ़े में या स्वरस में डालने के दृष्टि से जो खबरदारी हमें लेनी है, जो केयर हमें लेनी है, वो ये है कि उसे अच्छे से बॉईल करके स्टरलाइज करके फिर काढ़े में यानी फिर उसको यूज करना है, काढ़े के साथ बॉईल करके। इसके बाद में मधुर द्रव्य का प्रमाण, इसके ऊपर जब हमने स्टडी किया तो हमें ये मालूम पड़ा कि 25% से लेकर 300% तक या उससे भी ज्यादा 400 टाइम्स तक ग्रंथों में कुछ पाठ ऐसे मिलते कि उसमें मधुर द्रव्य आशावारिष्ट में डालने कहा गया है। अब इसका ये दोनों एक्सट्रीमिटीज की स्टडी हमने की है। जब 25% यदि हमने आशावारिष्ट में मधुर द्रव्य डाला, तो ऐसा महसूस हुआ कि आशावारिष्ट का संधान क्रिया होकर वो अम्ल संधान की तरफ परिवर्तित हो जाता है। यानी उसमें मधुरता तो रहती नहीं है, वो खट्टा होने लगता है, आगे जाके वो एसिडिक फर्मेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया सबसे कम मात्रा में डालने से होने वाला दुष्प्रभाव। और यदि हम 3 या 4 गुना डालेंगे, जैसे कि द्राक्षारिष्ट का एक पाठ है, उसमें कहा गया कि 6 लीटर काढ़े के लिए 10 किलो तक गुड़ डालो। इसमें होता है कि सैचुरेशन लेवल उसकी जो रहती है डिसॉल्व करने की गुड़ या शर्करा को, उसको वो पार कर लेता है, वहां तक कि वो डिसॉल्व कर लेता है, उसके बाद में एज इट इज पड़ा रहता है। तो बहुत बार ऐसे पार्टों से जब हम आशावरिष्ट बनाएंगे तो हमें
आश्वरिष्ट का पार्ट, उसका ड्यूरेशन सब खत्म होने के बाद भी जब हम छानने लगते हैं तो हमें दिखता है कि नीचे रेसिडुअल गुड़ हमें वैसा ही मिलता है, जिसका कि वो घोल में वो विद्राव्य हुआ ही नहीं है आश्वरिष्ट। और वो आश्वरिष्ट काफी हद तक इतना मधुर रहता है कि जैसा हम कह सकते हैं गुड़ का पानी हम पी रहे हैं, ऐसे ही उसकी स्टेज रहती है, या कुछ थोड़ा बहुत उसमें अलग अलग टाइप का गंध रहता है। तो इतने एक्सट्रीम लेवल तक के भी हमें डालना नहीं है और मिनिमम लेवल पे भी हमें डालना नहीं है। ये दोनों एक्सट्रीमिटीज को हमें बाईपास करना है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि, और ये थोड़ा कम ज्यादा होता है कि एवरेज जिसपे तिक्त रस कम है, जो कड़वा कम है या कसेला ज्यादा है, नहीं कषाय रस जिसमें कषाय रस और तिक्त रस जिसपे ज्यादा है, ऐसे आसवर स्टेज बनाने के होंगे तो उसमें 50 to 60% हम मधुर द्रव्य ने गुड़ डाल सकते हैं। और एवरेज मैं 50% तक किसी भी आसावरिष्ट में जो ज्यादा कड़वा भी नहीं होने वाला है, जैसा कुटेजरिष्ट हम काफी कड़वा होता है, या कुटकी युक्त कोई पाठ होगा तो काफी कड़वा होता है, या हरित युक्त कोई होगा अभयारिष्ट वगैरह, उसमें कसेलापन ज्यादा रहता है, कषाय रस। तो ऐसे इसमें एवरेज 50% तो सब में डालना है, और ऐसे यदि पाठ हो गए जिसपे तिक्त रस प्रधानता होगी तो उसमें 10% से 15% हम मधुर द्रव्य का प्रमाण बढ़ा सकते हैं। और ये ऐसा क्यों करना है? बेसिकली हम ये आसवारिष्ट बनाते क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि काढ़े को स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी सवीरता अवधि बढ़ाने के लिए, या स्वरस की सवीरता अवधि बढ़ाने के लिए हमने आसवारिष्ट आविष्कृत किए हैं। इसमें बेसिक क्या होता है? तो बेसिक ये होता है कि जो हम मधुर द्रव्य डालते हैं उसका कन्वर्शन अल्कोहल में मध्य स्वरूप में मध्यार्क में होता है, और वो मध्यार्क उस आसव वरिष्ठ के काढ़े को या स्वरस को स्टेबलाइज करते हैं। यानी हमारा एम क्या रहता है कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल को निर्माण करो और उसी से उस काढ़े को या स्वरस को स्टेबलाइज करो। तो हमारा उद्देश्य ये कि इसमें मध्यार्क निर्माण होना और वो स्टेबलाइज करना। अब ये मध्यार्क कब तक कितना निर्माण होना चाहिए? हम यदि इसके ऊपर यदि ध्यान देंगे तो 10 से 12% या मैक्सिमम 14% 14% तक के मध्यार्क निर्माण होता है, उसके बाद अपने आप वो रुक जाता है। वो रुक इसलिए जाता है कि उसके बाद में वो एक्टिविटीज कम होती है। अब ये इतना मध्यार्क निर्माण होने के बाद आगे हम एक्स्ट्रा कन्वर्शन के लिए उसमें मधुर द्रव्य देंगे तो वो एज इट इज अनकन्वर्टेड फॉर्म में वहां रहता है। और फिर ऐसे आसवरिष्ट हम देखते हैं कि बहुत मीठे लगते हैं और उसका प्लेजेंट नहीं रहता है उसका टेस्ट। तो ये सब रूल आउट करने के लिए हर वक्त हमारे आसवरिष्ट की एक पर्टिकुलर टेस्ट कायम रहने के लिए हमें इसको कहते हैं कि एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें डेवलप करनी पड़ती है। तो इस दूसरे से मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एवरेज 50% मधुर द्रव्य गुड़ बोलो या जो भी है डालना है वो डालता हूँ, और उसको आसवरिष्ट के इसके लिए संदान के लिए लगाता हूँ। अब इसमें हमने यदि स्टडी किया तो ऐसा देखा जाता है कि 10 से 15% या मैक्सिमम 20% यदि हमने मधुर द्रव्य आसवरिष्ट में डाला है तो उससे बराबर 12 से 14 मैक्सिमम 12 से 14 तक के मध्यार्क निर्माण होता है। ओनली 15 to 20% यदि हमने मधुर द्रव्य डाला तो बाकी का जो है 20-30% ये रेसिड्यूअली है, जो आसवरिष्ट को एक प्लेजेंट स्वीटनर करके काम करता है। तो जितना हमें कन्वर्ट करना है उतना तो हमने डाल ही दिया है, उसके अलावा भी हमने थोड़ा डाला कि जो उसमें यदि तिक्त रस होगा या कषाय रस होगा तो उसको ओवरकम करने के लिए बाकी मधुर द्रव्य काम करेगा, और जो भी 15 से 20% तक के मधुर द्रव्य है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का हमारा संधान कल्पना का उद्देश्य यही है कि मधुर द्रव्य को मध्यार्क में कन्वर्ट करके आसवरिष्ट को स्टेबलाइज करना, और इसीलिए हम ये सब चीजें करते हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो 25% ये बहुत कम हो जाता है और 300% ये बहुत ज्यादा होता है, और इससे हमारा उद्देश्य सफल नहीं होता। और इसका एक परिणाम ये भी होता है कि जो भी उसमें किण्वीकरण होता है या फर्मेंटेशन होता है वो हैम्पर्ड होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उन पे आता है कन्वर्शन करने के। जैसा 4 घंटे काम करने की क्षमता होने के बावजूद हम 20 घंटे काम करने के लिए किसी को देंगे तो वो जैसा स्ट्रेसफुल लाइफ में कन्वर्ट होता है या कंडीशंस में चला जाता है, वैसे ही जो किण्व रहता है या ईस्ट रहती है वो भी स्ट्रेस में चली जाती है और उसका काम करना वो रुका देती है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि आसवरिष्ट बन नहीं रहा है या बहुत स्लो कन्वर्शन रेट चल रहा है,
इसीलिए हम देखते हैं कि पहले जमाने में 3-3 महीने तक आशावरिष्ठों को वैसे ही पैक करके रखने के लिए कहा गया है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि एक्सेसिव स्वीट हमने मधुर द्रव्य डाल दिए गए होंगे, तो उसको कन्वर्शन का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है और पूरा कन्वर्ट भी नहीं होता है। इसका परिणाम मैं आगे बताऊंगा। इसके लिए दूसरा एक और भी तरीका होता है जो कि वाइनरीज में यूज किया जाता है, वो हम यूज कर सकते हैं। उसको कहते हैं कि स्टेप फीडिंग। हमने एक 15% मधुर द्रव्य डाल दिया, एक 2-3 दिन में उसका कन्वर्शन हो जाता है। इसलिए पीरियोडिकल ऑब्जर्वेशन आशावरिष्ठ का करना पड़ता है, उसके गंध, वर्ण, रस और बाकी चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो एक 15% डाल दिया, वो कन्वर्शन कंप्लीट होने के पहले ही हमें अगला फीडिंग उनको डालना पड़ता है मधुर द्रव्य का। ऐसा करके हम 50%, 60% तक फीडिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसके बाद में मधुर द्रव्य का तो ये हो गया कि हमें कैसा डालना है, स्टरलाइज करके डालना है, कि कौन सी मात्रा में डालना है, कितना डालने से कितना मध्यर का निर्माण होता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट कैसा मिलता है। और इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि कन्वर्शन का काम करता है, जिसके बदौलत हम आशावरिष्ठ बनाते हैं और जो सबसे अहम भूमिका निभाता है, वो है संधानक, या हम कह सकते हैं कि फर्मेंटर, जिसको हम किण्व भी कहते हैं या यीस्ट भी कहते हैं। तो पहले धातु की पुष्प या महुआ के फूल यूज करते थे, या द्राक्ष इटसेल्फ फर्मेंटेशन का काम शुरू कर देते। हम केवल द्राक्षों को क्रश करके बर्तन में रख देंगे ढक के, तो अपने आप फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। तो ये तीनों चीजें हम यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ संधानक, ये किण्व का सोर्स करके। इसके अलावा आज देखते हैं कि मार्केट में काफी सारे ऐसे यीस्ट या किण्व मिलते हैं, और पर्टिकुलरली इसमें सैकेरोमाइसिस सर्वेसिया प्रजाति के जो यीस्ट रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है, और उनके अलग अलग स्ट्रेन्स भी मिलते हैं। हमें किस प्रकार का स्ट्रेन चाहिए उनका, उस हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके या किण्व के इसमें टर्बो यीस्ट भी आता है, जो पर्टिकुलरली वाइनरीज में यूज किया जाता है, या जो बेवरेजेस बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसका काम ये है कि इसकी सस्टेनेबल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये 18 से 20% तक अल्कोहल होने के बावजूद ये काम करता है या सर्वाइव करता है। जनरल यीस्ट जो रहते हैं 10 से 12% तक अल्कोहल का परसेंटेज चला गया कि वो हैम्पर्ड हो जाते हैं, डॉर्मेंट स्टेज पे चले जाते हैं, उनका काम करना बंद हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ओवरऑल जो फर्मेंटेशन होता है उसमें 10 से 12% या कुछ ही केस में 14% तक सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल हमें मिलता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने और जो फूड एंड ड्रग एक्ट के हिसाब से हम यदि देखेंगे तो नॉट मोर देन 12% अल्कोहल की हमें परमिशन दी, उससे ज़्यादा उसमें होना नहीं चाहिए, ये कहा गया है। तो ये जो टर्बो यीस्ट जो रहती है, ये इसका सस्टेनेबल कैपेसिटी 18% से 20% तक होती है। इन्हें एक ही जो फॉर्मूला हम लगाएंगे उसमें काफ़ी हद तक अल्कोहल हमें मिलेगा, क्योंकि हम वैसे भी मधुर द्रव्य काफ़ी हद तक इन्हें हमारे रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ रहता है। तो ये ऐसे टर्बो यीस्ट यदि हमने डाले तो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल निर्माण हो सकता है, और हो सकता है कि इससे वो आशावरिष्ठ ज़्यादा मध्य की ओर बढ़ने लगेगा, तो इसे हम रुका सकते हैं। तो ये टर्बो यीस्ट है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आशावरिष्ठ का तो पाठ लगा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि ये इस पर कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, और एक्टिविटी हो नहीं रही इसका मतलब कि जो किण्वीकरण है वो हैम्पर्ड हो गया या ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये यीस्ट के लिए बूस्टर्स आजकल मिलते हैं, या हमारे शास्त्र में जो सुरासार बोला है, जो सबसे नीचे बैठता है, वो एक्चुअली ये सब डेब्रिज रहता है। प्रीवियसली जो हमने आशावरिष्ठ बनाया रहता है, वो आशावरिष्ठ के अंततः जो यीस्ट वहाँ पे डॉर्मेंट होके, या कह सकते कि मर जाने के बाद जो सेडिमेंट होके नीचे बैठती है, उसे ही हम सुरा बीज या किण्व बीज कहते हैं। इसका उपयोग हम उसी, जैसे ग्रंथ में कहा है कि दूसरे पार्ट के लिए नहीं, वो उसी फॉर्मूले का दूसरा जब पार्ट लगाते उस पर जब हमने यूज किया, तो इट वर्क्स एज ए यीस्ट बूस्टर। तो यीस्ट बूस्टर के दृष्टि से वो काम करता है, और वो डालने से उनको फूड मिलता है। जैसा कि शुगर तो फूड रहता है उनका,
लेकिन यीस्ट बूस्टर्स भी उनको काम करने में या डिवीजन करने में उनकी परसेंटेज या प्रमाण बढ़ाने के लिए जितने यीस्ट के प्रमाण बढ़ेगा उतना जल्दी ग्रोइंग होगा और उतना अल्कोहल जल्दी क्रिएट होगा। इसका फायदा भी हमें मिलता है। तो ये यीस्ट बूस्टर्स यदि हमने डाले, इसके अलावा भी मार्केट में कुछ यीस्ट बूस्टर्स मिलते हैं, वो हम डाल सकते हैं आशावरिष्ठ में भी। पर्टिकुलरली यूरिया बेस ऐसे बूस्टर्स रहते हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं। उसके पर्टिकुलरली कुछ फॉर्मुलेशंस मिलते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये यीस्ट बूस्टर्स हमने यदि डाले तो हमारा जो डॉर्मेंट स्टेज में गया हुआ आशावरिष्ठ का पार्ट है उसे हम फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं और वो एक्टिवेट होने के बाद अपना काम कर सकता है। अब ये पूरी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, यहाँ तक के तो आ गए हैं। तो इन सभी चीज़ों में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि सभी चीज़ों को सैनिटाइज करना, निर्जंतुकीकरण या सैनिटाइजेशन। जो भी पात्र हम यूज कर रहे हैं, जो भी यूटेंसिल्स हम यूज कर रहे हैं और जो भी चम्मच या कुछ भी यूज कर रहे हैं, इन सभी को सैनिटाइज या स्टरलाइज करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्टेमिनेंट्स बहुत रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छे से धो डाला, पानी से खंगाल डाला, तो उसके बाद में फिर उसको आश्वरिष्ट यूज किया, तो पानी में भी बहुत सारे ऐसे पायरोजेंस रहते हैं और वो पायरोजेंस वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और उससे आश्वरिष्ट खराब होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आश्वरिष्ट लगा देते हैं और बाद में हमें लगता है कि पहले पार्ट में जो आश्वरिष्ट बना था, समझो अपने द्राक्षासव ही बनाया, प्रीवियसली जो द्राक्षासव बनाया था उसी पर हुक्म हमने अभी भी पार्ट लगाया द्राक्षासव का, लेकिन उससे इसका गंध, वर्ण, रस, अपीयरेंस ये थोड़ा खराब लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है। उसके जैसी टेस्ट इसकी आई नहीं है, उसके जैसा एरोमा इसका आया नहीं है, उसके जैसा ही क्लियर ये नहीं हुआ है, इसमें मड़ी दिख रहा है या टर्बिड दिख रहा है। ये सब चीजें क्यों होती है? इसके लिए जो हमने शुरू में कहा कि गुड़ इज अ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। उसके बाद में जो हम पात्र यूज कर सकते हैं उनका सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली हुआ नहीं तो वो भी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है। जो हम उसमें स्टर करने के लिए चम्मच या कोई भी चीजें यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कंटेमिनेशन। हमारे हाथ हमने अच्छे से धोए नहीं है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं, वो भी कंटेमिनेशन का एक बड़ा रोल निभाते हैं। तो ये सब कंटेमिनेंट जब होते हैं तो ये कंटेमिनेंट, और दूसरी बात ये है कि हम जो धातु की पुष्प इसमें डालते हैं, और धातु की पुष्प यदि प्रॉपर नहीं होगा, बहुत पुराना होगा, बहुत दिनों से उसको दबा के रखा हुआ होगा, 4-5 साल पुराना हमें मिल गया और हमने यूज किया, दैट मे बी द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। तो ये सब चीजें एक एक बारीक बारीक चीजें हमें रूल आउट करनी पड़ती है। और ये ऐसा चीज है कि आगे में वाइल्ड ब्रूइंग होता है। वाइल्ड ब्रूइंग का मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरिया रहेगा, कुछ फंगस रहेंगे, यीस्ट रहेगी, ये सब अपने अपने हिसाब से, उनको तो गुड़ मिलता ही है तो बढ़ने लगते हैं और जैसा चाहिए वैसा उनका मल्टीप्लिकेशन होते रहता है। और पूरा आसवा रिश्ता ये अलग ही मोड़ पे और अलग रास्ते से चलने लगता है। और जब फाइनल प्रोडक्ट आता है तो हमें लगता है कि ये क्या होगा, ये तो पहले जैसा है ही नहीं। तो इसलिए जो डिफरेंसेस आते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट में, तो उसके पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाइल्ड ब्रूइंग। तो ये वाइल्ड ब्रूइंग हमें स्टॉप करना चाहिए, जिससे कि हमने कहा कि सैनिटाइजेशन इज द बेसिक प्रोसीजर टू स्टॉप इट। और उसके बाद में हम जो गुड़ डालते हैं उसको सैनिटाइज करना चाहिए, उसको बॉइल करके यूज करना चाहिए, स्टरलाइज करके। और जो पानी यूज करते हैं उसको भी हमने अच्छे से जिसको कह सकते हैं कि सॉफ्टनर से लेकर करना चाहिए। तो ऐसी चीजों की यदि तरफ यदि हम ध्यान देंगे तो जो कॉन्टेमिनेंट्स है आसवरिष्ट में जाने वाले, उसको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं। और हमारा जो पार्ट पहले लगाया है, अब लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे और आगे 10 बार लगाएंगे, तो उसमें वेरिएशन के चांसेस करीब करीब नील है या नगण्य है, या हम कह सकते हैं 1 या 2% या मैक्सिमम 5% के ऊपर वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए इन चीजों की तरफ हमें, वाइल्ड ब्रूइंग न हो इसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि जो संधान क्रिया को बूस्टअप करता है वो है प्रॉपर एनवायरनमेंट। अब ये प्रॉपर एनवायरनमेंट वैसे देखे जाए तो हमारे भारतवर्ष में जो वातावरण है या क्लाइमेट है वो इतना अच्छा है कि कौन से भी ऋतु में हमारे यहाँ अच्छे से ब्रूइंग होता है, अच्छे से संधान क्रिया होती है।
वैसा देखा जाए तो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो इनके लिए सबसे अच्छा है फर्मेंटेशन होने के लिए। वो मेंटेन कैसे किया जाए इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले ज़माने में हम देखते थे कि ज़मीन के अंदर घट को गाड़ देते थे, या फिर तल घर ऐसे बनाए जाते थे कि जहाँ हम ऐसे आश्वरिष्ट के ड्रम्स या चीज़ें रख सकते थे, या फिर धान्य राशि में इनको एम्बेड करके रखने के लिए कहा गया है। इसके पीछे रीज़न वही है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द दैट फॉर्मुलेशन। तो ये 30 से 35 डिग्री तक के टेम्परेचर हम किसी भी तरह से यदि मेंटेन रखे होंगे, हम उसके ऊपर कंबल डाल के रख सकते हैं। हम वुडन बॉक्सेस बना के उसमें ये फर्मेंटेशन की जो कैंस है या कार्बोइज है उनको रख सकते हैं, या स्टील की टोकरी में यदि हम बना रहे होंगे तो उसको बाहर से रैप करके रख सकते हैं। ये सब चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर अपने आप मेंटेन रहेगा। वैसा यदि हम देखेंगे तो जब ये ब्रूइंग प्रोसीजर या संधान क्रिया चलते रहती है तो वो पूरे द्रव्य का तापमान काफी हद तक बढ़ जाता है, और वो बढ़ने से हमें महसूस होता है कि इसका टेम्परेचर काफी बढ़ चुका है। और जैसे कि हम देखते हैं कि सोडा वाटर की बोतल हमने खोली तो उस पे जैसे बुलबुले सरफेस पे आते हैं, वैसे ही बुलबुले इसमें आना शुरू हो जाता है। और सरफेस पे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है कि जो जिससे हम जान सकते हैं कि ये एक जिंदा जागता एक कन्वर्शन चल रहा है यहाँ पे। लाइव यहाँ पे सब कन्वर्ट कर रही है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और ये टेम्परेचर हमें रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ हम रख रहे हैं इन चीज़ों को वहाँ ज़्यादा हवा भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत कम हवा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन काफ़ी मात्रा में होते रहता है। जैसा कि ये स्पीड अप होता है ब्रूइंग, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इसलिए जब तक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तब तक हमें कोई चिंता नहीं, बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालना जैसा जैसा ब्रूइंग का प्रोसेस धीमा होता जाता है, वैसे अंदर का प्रेशर कम होकर बाहर का प्रेशर बढ़ता है, तो बाहर की हवा अंदर जा सकती है, और इस समय से आशावार स्तर खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में हम देखते थे उसको सील करके रख देते थे, और सील करके रख देने से बाहर की हवा अंदर न जाए, और अंदर का प्रेशर अंदर ही रहता था, और इसलिए बहुत बार घट वगैरह जो यंत्र रहते थे वो फूट जाते थे प्रेशर से। इसलिए अब टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें एयरलॉक्स रहते हैं। एयरलॉक्स का उपयोग यदि हम करेंगे तो वो सिंगल वे रहता है, वन वे रहता है। वो अंदर से बाहर हवा को जाने देता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं आने देता। इसलिए हम उसको एयर टाइट रख सकते हैं, लेकिन अंदर का जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का जो लिबरेट हो रहा है इस हाई स्पीड से, वो बाहर चला जाता है, और हमें दिखता है कि वो बाहर जा रहा है। उसको बुलबुले जैसे कि हम ऑक्सीजन देते थे जब पानी का ह्यूमिडिटी की और वो मेंटेन करने के लिए जैसे बुलबुले दिखते, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले यहाँ दिखते हैं। और उससे हमें ये भी पता चलता है कि ब्रूइंग चल रहा है, नहीं चल रहा है, स्टॉप हो गया है, कैसा है। तो ये सब चीजें हमें एयरलॉक यदि हम उसको बैठाएंगे, और सिंपल है, ज़्यादा महंगा भी मिल सकता है, तो एयरलॉक यदि हम लगाएंगे तो वो आश्वादिष्ट कैसे कंडीशन में चल रहा है वो देख सकते हैं। और यदि हम ट्रांसपेरेंट वेसल्स या कैन में हम आश्वादिष्ट बना रहे होंगे तो हमें विजिबली भी दिखता है कि वो प्रॉपरली बन रहा है नहीं बन रहा है। उसके लेयर्स दिखते हैं, जो कि प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेधक, वक्रस, जो अलग अलग लेयर्स हमारे शास्त्र में बताए गए, वैसे लेयर्स हमें दिखते हैं। जैसे कि हम ट्रांसपेरेंट मीडिया में मटेरियल में जो उसको रखते कांच के कार्बन में रखेंगे या कैन में रखेंगे पानी के, तो हमें ये सब चीजें दिखती है, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये एयरलॉक का उपयोग हमें करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम इसे जितनी कम रोशनी में इसको रखेंगे, उसके ऊपर यदि कंबल ढाक देंगे या प्लाईवुड के बक्से में इसको रख देंगे, तो अपने आप उसमें रोशनी कम रहेगी। रोशनी कम होने की वजह से जो यीस्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका ग्रोथ अच्छा होता है। और यदि रोशनी मिल गई तो ऐसे बहुत सारे फंगाई रहते हैं कि जो सूरज की रोशनी में ज़्यादा एक्टिवेट होकर वो फैलने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट या ज़्यादा रोशनी हमें फर्मेंटेशन के प्रति से नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान देना जरूरी है। तो ये हो गया फर्मेंटेशन प्रोसीजर को हम कैसा एक्टिवेट करेंगे, उसको कैसा मेंटेन करेंगे, और किस दृष्टि से उसका लोकेशन उसका होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने देखी।
तो इस दृष्टि से जब सब चल रहा है फर्मेंटेशन, तो उसको आगे क्या करना चाहिए? तो हम देखते हैं कि हमारे पाठ में प्रक्षेप द्रव्य रहते हैं आस्वादिष्ट में, और ग्रंथों का यदि हम पाठ देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है कि ये प्रक्षेप द्रव्य कब डालने हैं, कब नहीं डालने। सब फॉर्मूला एक साथ लिखा रहता है कि ये प्रक्षेप कितने प्रक्षेप द्रव्य है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि सब प्रक्षेप द्रव्यों के साथ स्वाद को हम फर्मेंटेशन को लगाते हैं, या स्वरस को हम आस्वादिष्ट दृष्टि से संधान के लिए लगा देते हैं, और उसको हम संदन क्रिया में पूरा करके बाद में निकालते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि बहुत बार हम काफी सुगंध द्रव्य उसमें डालते हैं। कई बार हम सूंठ, मरीच, पिपली या चतुरजाट डालते हैं, और बाकी बहुत सारे द्रव्य डालते हैं। ये यदि हमने शुरू से डाले, जो भी प्रक्षेप द्रव्य शुरू से डाले, तो उनकी जो कुछ भी एरोमेटिक वैल्यूज है, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से लिबरेट होता है, तो उसके साथ धीरे 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 जो भी एरोमेटिक्स ऑयल्स बोलो, इसेंशियल ऑयल्स बोलो, वोलेटाइल ऑयल्स बोलो, ये सब धीरे धीरे निकलते हैं। और हम देखते हैं कि जहाँ भी आशा का कोई आयुर्वेदिक फार्मेसी का कारखाना होगा, तो वहां से अपने आप वो आशा की गंध आना, दूर से आना हमें महसूस दूर से महसूस होती है और आना शुरू हो जाता है। नागपुर में जब हम ग्रेट नाग रोड से जाते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहां से पास होते ही हमें मालूम पड़ता था कि बैद्यनाथ चौक आ गए, जहाँ पे आशा की गंध हमें आना शुरू हो जाती है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि शुरू में ही हमने प्रक्षेप द्रव्य डाल दिए, तो उसमें से जो भी इसेंशियल ऑयल्स हो गए या एरोमेटिक होंगे, वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। लेकिन यदि हम जो प्राइमरी ब्रूइंग या प्राइमरी फर्मेंटेशन हो गया, 8-10 दिन अच्छे से संधान क्रिया शुरू हो गई, और उसके बाद में 8-10 दिन हो गए, और उसके बाद में यदि हमने प्रक्षेप द्रव्य डाले, तो इसका फायदा ऐसा होता है कि मैक्सिमम कन्वर्शन जो भी हमें 8%, 10%, 12% अल्कोहल निर्माण चाहिए, उतना लेवल तक के वो पाठ आ जाता है, वहां तक आके वो रुका हुआ रहता है या वहां तक चालू रहता है उसका। उस वक्त यदि हमने ऐसे एरोमेटिक्स बोलो, या जो भी गंध द्रव्य है, सुगंधित द्रव्य है, या जो जिसके हमें फ्रेग्रेंस या टेस्ट अपेक्षित है, ऐसे द्रव्य यदि तब डाले और उसके बाद में उसको रखा, तो उसका इफेक्ट हमें ज्यादा महसूस होता है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। और ये सब प्रोसीजर प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रूइंग हम कह सकते हैं कि पहले जो खास स्पीड से ब्रूइंग होती है वो प्राइमरी ब्रूइंग, उसके बाद में वो डॉर्मेंट होकर थोड़ी धीरे धीरे चलने लगती है, तो सेकेंडरी ब्रूइंग, ऐसे 2 स्टेप में ये ब्रूइंग होती है। और उसके बाद में यदि हमें उसको उसको यदि ब्लेंडिंग करना है, पर्टिकुलर इसेंस उस पर डालना है, या इसी प्रकार से हर वक्त हर पार्ट की टेस्ट और हर पार्ट का गंध ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा हमारा कुछ फॉर्मूला होगा, तो वो हम ये सेकेंडरी ब्रूइंग के बाद हम डाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है कि आस्वादिष्ट या संधान क्रिया को रुकाना। ये ग्रंथ में कहीं नहीं बताया है। फिर बहुत लोग कहते हैं कि उसको रुकाने की क्या जरूरत है, वो जब अपने आप पर्टिकुलर लेवल तक आने के बाद वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, तो वो डॉर्मेंट होते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ कीट वो उसमें एक्टिव रहते हैं, और उनको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो फिर से एक्टिव होके आशावरिष्ठ की आगे जाके प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है कि हमने आशावरिष्ठ हो गया ऐसा समझ के उसको कैनिंग किया, बॉटलिंग किया, और उसके बाद में वो ऐसा बहुत कंपनियों के आशावरिष्ठ जब 5 लीटर 10 लीटर की कैन हमारे पास आती थी, तो हमने महसूस किया कि वो धीरे धीरे फूकने लगती है, उस पर प्रेशर बढ़ता है, जैसा भी हम ढक्कन खोलेंगे तो अंदर का जो ये रहता है, कैप रहती है जो अंदर की रहती है, वो एकदम धड़ाल से बाहर फेंकी जाती है हेवी प्रेशर से। तो ये वही इंडिकेट करता है कि आपका फर्मेंटेशन अभी तक चल रहा है और वो गैस बनाने की क्रिया चल रही है। तो इससे बहुत बार आपका जो भी कंटेनर जिसमें आपने रखा होगा वो स्पॉइल हो सकता है, घर में वो पूरा अस्वादिष्ट बिखर जा सकता है, या फिर वो उसके टेस्ट में फर्क हो सकता है, या जो मधुर द्रव्य पूरा खत्म होने के बाद वो एसिडिक फर्मेंटेशन की तरफ भी मुड़ जाता है। ऐसी सब चीजें जब होती है, तो ऐसा कई बार महसूस हुआ कि इसको हमने रुकाना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक आशावरिष्ठ में मध्यार्क निर्माण हो गया, जिसको हम देख सकते हैं। मध्यार्क गिनने की अनेक अनेक विधियां है, आजकल तो डिजिटल इक्विपमेंट्स भी मिल रहे हैं कि जिससे हम मध्यार्क देख सकते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देखते हैं उससे भी हम मध्यार्क देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर का कैलकुलेशन करके। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक वो आने के बाद हम उसको रोक सकते हैं।
अब इसको रोकेंगे कैसे? तो इसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय है। उसमें से कॉमनली यूज किया जाने वाला उपाय ये है कि इसमें सल्फाइड्स डालते हैं। पर्टिकुलर लेवल के कुछ सल्फाइड्स मार्केट में मिलते हैं। सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, ऐसे कुछ सल्फाइड जो मिलते हैं, जो सैनिटाइजर का भी काम करते हैं। इट वर्क्स एज ए सैनिटाइजर, इट वर्क्स एज ए प्रोहिबिटर। वो ये प्रोहिबिट करता है, ये इसको स्टॉप करता है। और उसका एक पर्टिकुलर लेवल में हमने मात्रा में यूज किया, तो ये एक्सेसिव फर्मेंटेशन हम जो होना नहीं चाहते हैं एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, उसको हम रुका सकते हैं। और वो रोकने का फायदा ये होता है कि आगे जाके कहीं बोतल फूट न जाए। हमने हमारे कस्टमर को तो दे दिया, हमारा 10 डॉक्टर हमारे हम बना रहे, मैं खुद बनाता हूँ और मेरे कई फ्रेंड्स को मैं बेचता था, 50-50, 100-100, 200 लीटर में बेचता था। और यदि उनके यहाँ जाके ऐसी कोई वारदात हुई तो डेफिनेटली हमारा नाम खराब होगा। इनके आसवारिष्ट में ऐसा प्रॉब्लम है तो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है और फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये हमें रुकाना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि इसको रुकाने से जो टर्बिडिटी रहती है आसवारिष्ट में, वो अपने आप धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम नितड़ बोलते हैं। आसवारिष्ट नितड़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए या वो मड़ी नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो ये चीज जो होती है उसमें कुछ अंश में जो यीस्ट के जो पार्टिकल्स रहते हैं, यीस्ट फ्लोटिंग यीस्ट रहती है, या भी और कुछ पिगमेंटेशन के पार्ट्स रहते हैं, ये सब धीरे 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 ये स्टॉप करने पर सेडिमेंट होने लगते हैं, जिसको कि हम रैकिंग कहते हैं। ऐसा आसवारिष्ट हमने छान लिया कि उसको बाद में रैकिंग के लिए स्टेबल जगह पे हमने रखना चाहिए कि अपने आप वो धीरे 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 सब सेडिमेंट होने लगता है और ऊपर का जो आसवारिष्ट है जो क्लियर होना शुरू हो जाता है। और ऐसा होने के बाद यदि हम उसे ट्रांसफर करेंगे, उसको छानेंगे, पहले प्राइमरी छानना तो हो ही जाता है, लेकिन इसको जब रैकिंग के लिए रखते हैं तो ये जो सेडिमेंटेशन होता है, तो नीचे 1 से 2 इंच, समझो अपने 20 लीटर की कैन यूज की है तो 1 से 1.5 इंच तक की उसका अपने आप लेयर नीचे जमा होने लगता है, जिसमें पर्टिकुलरली यीस्ट रहती है और जो काढ़े में के जो कुछ पिगमेंटेशन ऐसे जो अनसोल्यूबल मटेरियल होगा पानी में, तो वो सब नीचे बैठते हैं। तो इस लेवल को हम देख भी सकते हैं और उस हिसाब से हम एक ट्यूब डाल के उसको साइफन करना चाहिए, न कि ओपन कंटेनर में उसको डालेंगे और फिर बाद में वो बर्तन में से हम बोतलें भरेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका आसवारिष्ट ये ज्यादा हवा के संपर्क में आता है और जितना एयर के कांटेक्ट में आएगा उतना उसमें से अल्कोहल जो भी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन होना शुरू हुआ तो उसके बॉटलिंग करने के बाद भी उसमें टेस्ट में चेंज आ सकता है, उसका फ्रेग्रेंस, उसका गंध, ये हमें चाहिए वैसा न रहकर थोड़ा डेविएट हो सकता है। तो इस दृष्टि से इसे साइफन करना चाहिए और साइफन करने के बाद जितना कम से कम एक्सपोजर मिले इस दृष्टि से उसको बॉटलिंग करना चाहिए। और ऐसा करने से कम एयर कांटेक्ट में आसवारिष्टा आना चाहिए, कम से कम कॉन्टेमिनेंट्स उसमें कम से कम बोले तो जाना ही नहीं चाहिए कोई भी कॉन्टेमिनेंट्स। इन सब चीजों को हमने यदि ख्याल में रख के आसवारिष्ट यदि किया तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी आसवारिष्ट ये बनाने वाले का खराब नहीं होगा और अच्छे क्वालिटी का आसवारिष्ट होगा। उसकी टेस्ट यानी गंध वर्ण रसोत्पत्ति जो है, सिद्धि लक्षण है, वो सब उसमें आएंगे और आपका जो हर वक्त का पाठ है वो वैसा की वैसा ही उसका परिवर्तन जो है, पहले पाठ की जो गंध वर्ण रसोत्पत्ति है उसी दृष्टि से अगला पाठ भी होगा। लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि आप जो पाठ्य द्रव्य यूज करते हैं वाट कितना रिड्यूस करते हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी आपके आसवारिष्ट के टेस्ट या एरोमा की ये डिपेंड करता है। लेकिन जो पार्ट ब्रूइंग के वक्त खराब होता है उसको हम इस दृष्टि से अवॉइड कर सकते हैं, जो अभी मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए। लास्ट 10 to 15 ईयर से मैं पर्टिकुलरली आसवारिष्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। सभी प्रकार के आसवारिष्ट में बनाता हूँ। सिंगल ड्रग का भी आसव बनाता हूँ या किसी वैद्य को पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन से आसवारिष्ट चाहिए होगे तो वो दूसरे से भी आसवारिष्ट बनाता हूँ। ये सब चीजें आफ्टर ऑल इट्स अ स्किल। ये स्किल केवल सुनने से आता नहीं है, आइडिया आ सकती है, लेकिन
हम जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो तब जाके हमें जो डिफिकल्टीज आती है या डू एंड डोंट्स रहते हैं, वो चीज़ें हम तब सीखते हैं जब हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना भी मुझे पॉसिबल होगा उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है। किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे या कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। Hello, thank you very much, sir, for your very elaborative session about the preparation and of ASA वरिष्ठ। मैं डेलीगेट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई डाउट्स रहेगा तो वो आप चैट सेक्शन में डालिए, सर वहां से पढ़ के उसका आंसर कर सकेंगे। प्रमेय के ऊपर आशा वरिष्ठ का मेरा एक आर्टिकल ही है जो आयुर्वेद पत्रिका में मैंने प्रसिद्ध किया है, पर्टिकुलरली च्यवन च्यवनप्राश के ऊपर। उसका मेरा पेटेंट भी मैंने लिया है, च्यवनासव करके। आशावरिष्ठ के बारे में यदि हम देखेंगे तो प्रमेह में कम से कम 40 आशावरिष्ठ बताए हैं जो कि प्रमेह में यूजफुल है। उसमें से एक दशमूलारिष्ट भी है और प्रमेह में आशावरिष्ठ वर्जित नहीं है। हालांकि वो मधुर द्रव्य से बनाए होंगे तो भी, क्योंकि जो मात्रा में हम आशावरिष्ठ देते हैं वो मात्रा में मधुर द्रव्य उसके बॉडी में एंटर नहीं करता, शरीर में नहीं जाता, इसलिए वो हानिकारक नहीं है। इसलिए प्रमेह में आशावरिष्ठ अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। हम इसीलिए मैंने कहा कि हम कहाँ स्टॉप करना है, हमें आशावरिष्ठ कितने परसेंट तक उसमें मधुर द्रव्य रखना है और कितने परसेंट तक नहीं रखना है, इसका जस्टिफिकेशन हमने खुद में करना चाहिए। हम प्रमेय के लिए यूज कर रहे होंगे तो उसको मैक्सिमम कन्वर्शन के लिए रखेंगे, और यदि हम एक पैलेटेबल आशावरिष्ठ बनाना चाहते हैं तो हम थोड़ा जल्दी उसको स्टॉप करेंगे। ये डिपेंड है कब तक चालू रखना है, कब तक बंद रखना है, कितना मधुर रखना है, द्रव्य रखना है, टेस्ट रखना है और कितनी कम रखना है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। और ऐसे तरीके से हम प्रमेय के लिए भी अलग स्ट्रेंथ के आशावरिष्ठ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ हाँ, फर्मेंटेशन के लिए जो सल्फाइड्स आपने डालने को, फर्मेंटेशन रोकने के लिए जो सल्फाइड्स मिलाने को बोले हैं, तो वो कब अपने को मिलाना है, कब उसमें डालना है, क्या कैसा मतलब करना है जब वो? हमें स्टॉप करना है, देखिए पहली बात तो दीज आर ऑल वी कैन यूज, दीज ऑल सब्सटेंसेस वी कैन यूज एज ए सैनिटाइजर इन अर्ली स्टेज। जो बर्तनों को साफ करना है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में जब हमें ब्रूइंग को स्टॉप करना है तब भी हम यूज कर सकते हैं। इसको पानी में डिसॉल्व करके आस्वादिष्ट में डाल दिया तो वो अपने आप ब्रूइंग प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। आखिरी में यूज करना है जब पूरा खत्म हो गया तब। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर मैंने द्राक्षासव बनाया था, बनाया है, लेकिन जब मैंने वो बना आफ्टर फर्मेंटेशन उसको कैन में जब 5 लीटर के कैन में जब डाला तो उसमें भी एक ऐसे आवाज गैस फॉर्म होने जैसा लगा। मैंने तो अभी मेरा पूरा लेक्चर का जो बेसिक था कि फर्मेंटेशन ये बहुत चलते रहता है हमारे शास्त्र में, जो प्रोसीजर से हम बनाते हैं, क्योंकि हर चीज देखो जैसा कि हम देखते हैं कि शास्त्रों में शास्त्र ये दिशा दर्शक है, हमें केवल हमारी खुद की बुद्धिमत्ता यूज करके हमें बहुत सारी चीजें बनानी रहती है। तो शास्त्रों में ये चीजें ज्यादा डिटेल में बताई नहीं गई है। वो भी उस जमाने में ऐसी चीजें करते होंगे लेकिन जिसका जिक्र उन्होंने ग्रंथों में नहीं किया है। तो फर्मेंटेशन को यदि स्टॉप करेंगे हम तभी जाके वो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो मैंने पहले बताई है। उसको स्टॉप करना चाहिए और स्टॉप करेंगे तो वो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि डू वी ऑलवेज नीड टू ऐड वाटर फॉर कंजम्पशन? कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को आस्वादिष्ट ऐसे ही पीने की आदत है। मैं खुद बचपन से ऐसे आस्वादिष्ट पीता था, द्राक्षसो आता था, द्राक्षादिष्ट आता था, या और बहुत सारे बोतलें सैंपल की आती थी बचपन में हमारे पिताजी के पास, तो मैं वैसे ही पीता था। इट डिपेंड्स, आपकी कैपेसिटी उतने अल्कोहल टेस्ट टॉलरेट करने की होगी तो आप ऐसे भी आस्वादिष्ट पी सकते हैं। द्राक्षसो की बोतलें लोग पी जाते हैं। उसके बाद में सल्फाइड्स
डालने से आसव अरिष्ट के गुण में बदल आ सकते हैं क्या? नहीं, उसकी मात्रा बहुत कम रहती है, तो उससे कोई बदल नहीं आता है। एक्चुअली जो शक्कर हम यूज करते हैं उसमें भी सल्फर रहते हैं, सल्फर ट्रीटेड शक्कर रहती है, इसलिए आज की शक्कर जो है वो वापरने के बाद बहुत बार असवरिष्ट बनते नहीं है, क्योंकि दैट सल्फर प्रोहिबिट्स टू ब्रू द मटेरियल, ब्रूइंग को ही वो प्रोहिबिट करता है, इसलिए ऐसे सल्फर वाली शक्कर हमने यूज की तो वो ब्रू करना स्टॉप कर देता है। और ये जो हम बता रहे हैं कि इसका मात्रा बहुत कम रहती है, तो पूरे असवरिष्ट के रेशियो में बहुत कम रहता है। और एनी नेचुरल मेथड टू स्टॉप द फर्मेंटेशन, नेचुरल मेथड वैसे देखे जाए तो अपने आप जब वो पूरे प्रोसीजर को खत्म करेगा, जैसा पंखे का बटन तो हमने बंद कर दिया है, उसका बॉल बेयरिंग अच्छा होगा तो वो अगले 3 मिनट तक चलते रहेगा, वो खराब होगा तो वो 2 मिनट आधे मिनट में स्टॉप हो जाएगा। इट्स अनप्रिडिक्टेबल प्रोसीजर। 6 महीने तक के भी असवरिष्ट बनते नहीं, या कुछ बन गए तो 15 दिन में बन जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द, जैसा कि आपने धातु की पुष्प पुराना डाल दिया तो उसके साथ में वो बाकी चीजें भी आ गई फुकट में, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, फंगल कंटेमिनेशन या और बाकी के पायरोजेंस उसके साथ आ गए, यीस्ट के अलावा वो सब मिलकर एक साथ मिलकर वो ब्रूइंग शुरू कर देते, तो इसका प्रॉब्लम आता ही है। तो ये अपने आप रुकने के लिए नेचुरल टाइम ही लिमिट है उसकी, और उसके बाद में हम देखते हैं कि 3-3, 4-4 महीने या 90-90 दिन के भी ऊपर हम हमारे शास्त्रों में कुछ पाठों में बताया गया है। तो इतने देर के बाद हम इतिहास और एक बैच हमने लगाया और 3 महीने के बाद वो हमारे हाथ में आने वाली होगी, तो हमारा उतना बिजनेस भी कम होगा और प्रोडक्ट हाथ में आएगा तो वो ओपन होने के बाद वो खुलजा सिम है कि वो क्या हमें मिलने वाला है, इसका प्रिडिक्शन भी हमें उस जमाने में हम कर नहीं सकते थे कि पहले जैसी टेस्ट रहेगी, आरोमा रहेगा या फंगस दिखेगा, उसके ऊपर क्या दिखेगा। तो ये सब डिपेंड करता है, तो इसलिए ये सब प्रोसेस को बाईपास करने की दृष्टि से भी हमें काम करना जरूरी है। सर कितनी मात्रा होनी चाहिए सल्फेट्स की, ये डिपेंड करता है आप किस क्वांटिटी में यूज करेंगे। 0.5 ग्राम भी आप यूज कर सकते हैं फॉर 1 लीटर, और उसका कैसा, और जो आप डालेंगे उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना क्वालिटी का है। आज मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे स्ट्रेंथ है, आप कौन से स्टैंडर्ड कंपनी और क्वालिटी का रिएजेंट यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। चालू मार्केट में आप लेंगे तो उसका असर कुछ होता भी नहीं है, और स्टैंडर्ड कंपनी का हाई कॉस्ट केमिकल्स रहती है वो लेंगे तो आधे ग्राम से भी काम हो जाएगा। सर धातु के पुष्प अगर हम डायरेक्टली डाल सकते हैं और या फांट बनाकर डाल सकते हैं उसमें जो तो फांट आपको आशावारिष्ट जब बनाएंगे, समझो अरिष्ट बना रहे हैं आप, उसमें काढ़ा आप देंगे तो काढ़े का टेम्परेचर आप तो बॉइलिंग टेम्परेचर तो नहीं यूज कर सकते, उसको ठंडा तो हो ही देना पड़ता है, यानी वो 32 डिग्री तक के रूम टेम्परेचर तक के तो आ ही जाते हैं। तो आप उसका फांट यूज करके उसमें डालेंगे तो भी चलता है। इसके लिए एक प्रोसीजर ऐसे कि आपके पास फ्रेश गारंटेड धातु की पुष्प होंगे तो आप उसका एक कल्चर बना सकते हैं, यानी एक शुगर वाटर तैयार करने का ल्यूकवार्म 32 डिग्री का, और उसमें ये फूल पहले डाल के एक आध दिन उसको अच्छे से ढक के रख देने के, तो उसमें जो यीस्ट है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, और ऐसा जो कल्चर है वो अच्छे से बन गया फिर उसको फिर हम आश्वरिष्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आप कर सकते सर हमें जब मार्केट से धातु की पुष्प मिलता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी होते हैं, तो उसको हैं। क्लीन उसमें करके कम और पत्र ज्यादा रहते हैं, हाँ पत्र ज्यादा रहते हैं वो तो पत्र के फिर वो ऊपर। हाँ, सर कैसे मतलब वो क्लीन करके या फूल ही डाले कैसे? देखिए ये जब ये सब जब व्यापारीकरण हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ, तो लोग कैसे है कि धातु की पुष्प के अंडर कुछ भी बेचते हैं, कचरा पट्टी भी बेच डालते हैं, लेकिन ये हमारा काम है कि हम उसमें से चुन चुन के फूल अलग निकाल सकेंगे तो निकालो, या ऐसे एजेंसी को बताओ कि भाई हमें केवल पुष्प चाहिए, आप पहले शॉर्ट करके हमें पुष्प दो, या फिर हमें घर में आने के बाद समझो 5 किलो धातु की पुष्प लाए तो उसमें से 1.5 किलो, 2.5 किलो जेमतेम हमें कम से कम हमें धातु के पुष्प मिल सकते हैं। दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा असवरिष्ट अच्छा बनाना है तो ये कॉन्टेमिनेंट्स हमें हटाना चाहिए।
Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Any question? और कुछ पूछना है किसी को? सर कभी कभी ऐसा होता है फर्मेंटेशन के दौरान 1 महीने के बाद अगर अपन खोल के देखा है वो पात तो उसमें काय मराठीत आपण त्याला अळ्या झालेल्या कधी कधी दिसून येतात. मग ते काढून टाकून ते वापरायचं की पूर्ण फेकूनच द्यायचं, ते संधानाचा तो भाग म्हणायचा का कसं, एकदा ते नाही क्लिअर नाही, केलं तर बरं. संधानाचा भाग तो मुळीच नाहीये. अळ्या झाल्या याचाच अर्थ की जे कृमी संसर्ग झालेला आहे अशाला तर ते डिस्कार्डच करायला पाहिजे. ग्राह्यत्व जे सांगितलेलं मराठीतच उत्तर देऊ ना, ते हिंदीत देऊ? हो चालेल सर, चालेल. ग्राह्यत्व जेव्हा आपण द्रव्याचं बघतो, जे मी पहिल्यांदा सांगितलं की काढा बनवण्यासाठी घ्यायचं द्रव्य ते कोणत्या क्वालिटीचं त्याच्यावर आपल्याला मिळणारा काढा अवलंबून आहे. त्या ठिकाणी आपण बघतो की कृमी संसर्ग झालेलं द्रव्य आपल्याला घ्यायला नाही पाहिजे. इथे सुद्धा जेव्हा त्याच्यात अळ्या होतात याचा अर्थच की त्यामध्ये ते जे गुळ आपण घातला आहे काढ्यामध्ये, त्या गुळावरती माशा बसल्या आणि त्या माशांनी त्यावर अंडी टाकलेली होती ऑलरेडी, आणि त्या अंड्यासहित तो गुळ त्याच्यात टाकला आपण आणि त्यांना फेवरेबल कंडिशन मिळून त्या अळ्या झाल्या. जसं मॅगेट्स होतात की नाही जखमीमध्ये, बघितल्यात का कधी मॅगेट्स? हा सर, हा. मग तशा त्या मॅगेट्स तशाच अळ्या असतात, त्या होतात त्या. तर त्या कॉन्टॅमिनेटेड आहे, त्याच्या ते तुम्ही गाळून गिळून वापरू शकाल, पण त्याचं वीर्यता किंवा बाकी काय तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये इतर गोष्टी मिळतील हे सांगता येईल. ओके ओके, थँक्यू सर. अजून कोणाला काही? आप में से कितने लोगों ने खुद ने आसावरिष्ट कभी बनाया है? ऐसे है कोई आज की चलो इसमें ज्वाइन किए हुए? हेलो, यदि हम देखेंगे तो आसावरिष्ट ये ऐसा कल्प है वैशिष्ट्य कल्पना का कि जिसको हम रसकल्प की तुलना में यूज कर सकते हैं, और इसीलिए पुराणस्य पुनेर युग का उसमें पहला नंबर आसव का है, उसके बाद में धातु का है, उसके बाद में रस का है. इसलिए आसवरिष्ट ये हम कैसे यूज करेंगे उस हिसाब से हम उसको मोल्ड, हमारे हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं. इतना ये अच्छा कल्प है. और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि सिंपल क्वाथ देने के बजाय आसवरिष्ट दिया तो उसका जो व्यवहारिक विकासित्व ज्यादा होने के कारण हमारा जो मेडिसिन है वो टारगेट डिलीवरी करता है, या व्हीकल अच्छा होने की वजह से इमीडिएट उस जगह तक पहुंचता है और इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है. और हमने पंचकोलासो का उपयोग नस्य के लिए भी किया है. एक आईसीयू के पेशेंट को अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस कंडीशन में जब था, तो आसावरिष्ट नेजल पैसेज या म्यूकोजल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, जस्ट जैसा कि हम अल्कोहल का देखते हैं. तो वो बेनिफिट हमें हमारे द्रव्यों को वहां तक पहुंचाने के लिए आसावरिष्ट के द्वारा उपयोग उसका हो सकता है. इसलिए आसावरिष्ट ये वैशिष्ट्य कल्पना इस क्षेत्र का एक सबसे इम्पोर्टेंट कल्प है, ऐसा मेरा खुद का मानना है. तो मैं हर फॉर्मूला, जैसा पर्टिकुलर टैबलेट का फॉर्मूला होगा, रक्त प्रसादन गोली में बना रहा हूँ तो उसका ही मैं आसावरिष्ट भी बनाऊंगा. ये सब ऑप्शंस मेरे पास में रखता हूँ, हर चीज का आसावरिष्ट जो पॉसिबल होगा वो बनाना. उसके टैबलेट फॉर्म, चूर्ण फॉर्म और आसावरिष्ट फॉर्म, इन सभी फॉर्म में हम यूज करते हैं. तो डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा यूज करना है. ये वेरिएशन हमारे पास बहुकल्पम बहुगुणम सत्पन्नम योग्यम औषधम, ऐसा हम हर चीज सर सर मी आसावरिष्ट बनवते, पण तुम्ही जसं आपलं नाव काय सांगितलं म्हटलं मॅडम? की डॉक्टर पुष्पलता शेट्टे सर, सांगलीहून बोलते सर. ओके. सर पण जे काही आपले काढ्यांचं जसं तुम्ही सांगितलं की आसावरिष्ट आपण बनवू शकतो, मग त्याच्यामध्ये धातकी पुष्प आणि म्हणजे
एक स्टँडर्ड ठरलेलं आहे की गुळाचं प्रमाण वगैरे प्रत्येक पाठानुसार वेगवेगळे दिलेले आहेत. पण बरोबर. काहीचे जे आपण काढ्यांचे सपोज बनवणार आहे तर त्याच्यामध्ये गुळ किंवा साखर याचं प्रमाण आणि धातकी पुष्प याचं प्रमाण म्हणजे कशा पद्धतीनं ठरवायला पाहिजे? बघा, एक गोष्ट अशी आहे की धातकी पुष्पाचं प्रमाण हे ग्रंथकारांनी दिलेलं आहे. ते त्यांच्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे त्यांना त्यावेळेला मिळत असलेल्या क्वालिटी मटेरियलच्या दृष्टीने त्यांनी ते ठरवलेलं की ते सरळ गार्डन मध्ये जायचे, धातकी पुष्प तोडायचे आणि आणून त्याचा वापर करायचे. असं आपण म्हटलं तर ते अतिशक्य होणार नाही, इतकं फ्रेश त्यांना मिळत होतं. त्याच्यामुळे त्यांनी जे प्रमाण दिलेलं आहे ते त्यांच्या काळानुसार आणि केवळ धातकी पुष्पाचं आहे. पण तुम्हाला मार्केटमध्ये मिळणारं जे धातकी पुष्प त्यात जर 50% पेक्षा जास्त जर पालाच असेल त्याचा धातकीचा ओरबडून काढलेला फुलासहित, तर तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे फुलं वेगळी करावी लागतील, की वर्षभरापेक्षा जास्त जुनी नाही याची खात्री असणं गरजेचं आहे. तर ते प्रमाण जे सांगितलेलं आहे ग्रंथात त्याप्रमाणे ते काम करू शकेल, किंवा त्याच्यापेक्षा थोडं जास्तच वापरावं लागेल तर ते काम करेल. आणि गुळाच्या बाबतीत असं म्हणावं लागेल की खूप वेळा गुळाचं प्रमाण हे वाजवीपेक्षा जास्त सांगितलेलं असतं. त्याचं कारण असं आहे की त्या काळामध्ये या बाकीच्या गोष्टी नव्हत्या. त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी लॉंग टर्म वापरत पण नव्हते ते आसवरिष्ठ, किंवा 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष ठेवलेलं आहे. त्यांचे आसवरिष्ठ हे वर्षभरात संपून जायचे. पुन्हा नवीन सगळे द्रव्य आले की नवीन बनवायचे, असं कंटिन्यू प्रोसिजर होतं. ते काही असं मद्य साठवून ठेवण्याच्या दृष्टीने करून ठेवलेलं आहे आणि तसं असा प्रकार नव्हता. पण जे आपण बघतो की त्याचे कार्यकारी तत्व हे अनेक वर्षापर्यंत टिकून राहतं. म्हणजे 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष जरी झाली तरी ते त्याचं कारण की त्यात मद्यार्क आहे. मद्यार्क असल्यामुळे त्याची सहविरतावादी टिकून राहते. आणि म्हणून मग तो जो गुळ त्यात टाकायला त्यांनी सांगितलाय तो त्या पाठाच्या अनुसार त्यातल्या घटकद्रव्यांच्या रसविर्यानुसार तो गुळ टाकायला सांगितलेला असू शकतो. पण ऑब्झर्वेशन असं आहे की याला 25% पासून 30% पर्यंत मधुर द्रव्य टाकायला सांगितले, की ज्याचा सारासार विवेक करायला आपल्याला दिलेला आहे. ग्रंथकारांनी जरी पाठ दिलेले असले तरी त्याच्यात व्हेरिएशन किंवा आपल्याला हवा तसा बदल आपण करू शकतो, आणि तेवढं त्यांनी आपल्याला अनुमती दिलेली आहे. आणि म्हणून तुम्हाला जर असं वाटतं की हे खूप जास्त प्रमाण होतं, 50% ते मिनिमम टाकायचंच. पण तुम्हाला 50% टाकल्यानंतर तुम्हाला ते संधान क्रिया विशिष्ट लेवल नंतर स्टॉप करायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये किती अल्कोहोल निर्माण झालं हे बघून तुम्ही ती कशी कंटिन्यू महिना, 1.5 महिना, 2 महिने ठेवून तर ते सगळा टाकलेला जो मधुर द्रव्य तुम्ही गुळाचा पाठ आहे ते सगळं खाऊन टाकतील, आणि त्या असं वरिष्ठ आंबट व्हायला लागेल. म्हणजे त्याचा आम्लसंधानाकडे ते झुकायला लागेल. आपल्याला वाटतं आपण इतका मोठा गुळ टाकला, इतकी साखर टाकली की तिथे हे आंबट कसं काय झालं, त्याचं कारण आहे की ते आम्लसंधानाकडे झुकायला लागतं. आणि म्हणून आपल्याला ते पर्टिक्युलर त्याचा हे बघावं लागतं, पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर गंध वर्णन असेल तर तुम्ही ते तसंच मेंटेन करू शकाल. हे सर झालं पाठानुसार, पण काही सपोज असं महारासनादी काढ आहे त्याचं आपण असं अरिष्ट फॉर्म मध्ये असं बनवायचं आहे म्हणजे रेडी देण्यासाठी, तर त्याच्यामध्ये प्रमाण नाही दिली, मग त्यावेळेस आपण असं 50 म्हणजे 50% वगैरे गुळ वापरून आणि धातकी पुष्प एका काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. परमिटेशन कॉम्बिनेशन आहे सगळं. सगळं परमिटेशन कॉम्बिनेशन आहे. आपल्या वैयक्तिक अनुभव आणि आपल्याला आपण काय काय प्रोसिजर फॉलो करून ते करतो त्याच्यावरती तो अनुभव डिपेंड असतो. 50% मी हा माझा अनुभव सांगितलेला की ऍटलिस्ट 50% टाकायचं, आणि आस्वारिष्ट साधारणतः 15 दिवसात बेसिक आस्वारिष्ट प्रायमरी ब्रुईंग आणि सेकंडरी ब्रुईंग कम्प्लीट होऊन जातं माझ्याकडे. आणि मग 15 दिवसानंतर त्याला रँकिंगला म्हणजे स्टेबल ठेवलं तर तो साधारणतः 3ऱ्या आठवड्यात तो बॉटलिंग करायला तयार होतो. असं साधारणतः प्रोटोकॉल माझ्याकडे असतो. म्हणजे मला एखादं औषध संपायच्या आधीच त्याचा पाठ लावा लागतो, तिथे संपायच्यात माझा असं तयार. सर आणखी एक गोष्ट विचारायची होती. तुम्ही जसं सांगितलं की फर्मेंटेशन आपल्याला स्टॉप करायचं जे म्हटलं तुम्ही, तर ते सर मी आतापर्यंत करते, पण मी फर्मेंटेशन स्टॉप म्हणजे एकदा गाळून घेतलं, म्हणजे फर्मेंटेशन प्रोसिजरचे 3 आठवडे म्हणजे उन्हाळ्यात आता 3 आठवडे वगैरे झाल्यानंतर ती जी काही परीक्षा सांगितलेली आहे ती झाल्यानंतर पूर्ण झाल्यानंतर परत त्याला काही मी सर स्टॉप, मी म्हटलं की गॅस फॉर्म झाल्यासारखं वाटतंय मला. आणि तुम्ही सांगितलं स्टॉप झालं नाहीये, ते हॅम्पर्ड झालं फक्त. बर, म्हणजे झोपून गेले, शांत झाले ते, त्यांच्यावरती लोड आला, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आला सगळ्या यीस्ट वरती, आणि ते डॉर्मंट झाले.
म्हणजे अंडरग्राऊंड झाले समजा ते, आणि फेवरेबल कंडिशन मिळाली की पुन्हा बाहेर आले पुन्हा काम करायला लागले असं समजायचं. म्हणजे कन्फर्मेटरी आपण कधी कन्सिडर करू की सर हे पूर्ण प्रोसेस झाली आहे असं? त्यातलं मधुर अंश जोपर्यंत आहे, एक साधं हा कॅल्क्युलेशन आहे, त्यांना खायला तिथे मधुर रस आहे तोवर ते ऍक्टिव्ह राहू शकतात. बर पण त्यांचा टॉलरन्स 12 किंवा 15% पर्यंत असेल तर त्याच्यानंतर ते डॉर्मंट होऊन जातात. आणि ओके होतं काय, आपल्या जसं धातकी पुष्प वगैरे टाकल्यामुळे काय होतं की ब्रुईंग प्रोसिजरच ऍक्टिव्हेट होत नाही लवकर. पहिले 7-7, 8-8 दिवस त्याच्यात काही होऊन राहिलाय की नाही होऊन राहिलाय, बरोबर झालाय की नाही झालाय, असे संकेत आपण ते 10 वेळा होऊन बघतो की काय होऊन राहिलाय का, काही दिसतंय का, बुडबुडे दिसतायत का, आवाज येतोय का, हे पाहण्यातच आपलं एखाद 3-4 दिवस 5 दिवस जातात. म्हणजे लेट ब्रुईंग सुरू झालं तर कॉन्टॅमिनेशनचा रेट वाढतो. दॅट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितका लेट तितका जास्त तुमचं वाईल्ड ब्रुईंग होण्याचे चान्सेस असतात. जितकं इमिजिएट ब्रुईंग सुरू होऊन जाईल, म्हणजे तुम्ही सगळं संधान एकत्र केलं आणि त्याचं ब्रुईंग विदिन 2-3 अवर्स मध्ये त्याच्यात चेंजेस दिसायला लागले तर समजायचं की आपला पाठ व्यवस्थित लागला आणि त्याच्यात प्रॉपरली ब्रुईंग सुरू झालेला आहे. हे नेक्स्ट 72 अवर्स मध्ये 7-8% पर्यंत त्याच्यात अल्कोहोल डेव्हलप करतात. 5व्या-6व्या दिवसापर्यंत त्यांच्या ऑप्टिमम लेवलला जातात. 8व्या-10व्या जास्तीत जास्त 12व्या दिवसापर्यंत ते डॉर्मंट होऊन जातात. ही मेथडॉलॉजी असते. आणि ओके जर तुमचं ब्रुईंग स्टार्ट नाही झालं, त्याच्यात तुमच्या त्या धातूच्या पुष्पामध्ये पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात ती हिस्टच नसेल, ती ऍक्टिव्हेटच नसेल, ती डेड असेल, तर ती जिवंत कशी होणार? ते तसंच पडून जाईल. ते असं एक सोल्युशन तयार होऊन जाईल आणि त्याच्यात बाकीच्या पायरोजेन्स त्यांना चान्स घेतील आणि ते ऍक्टिव्हेट होतील आणि ते मग ते फंगस येईल, कुठे अळ्या होतील, तर कुठे घाणेरडा आवाज येईल, तर कुठे काय. या ज्यांना अपेक्षित आहे, ज्यांनी काम करावं ते तिथे उपलब्धच नाहीयेत, किंवा ते झोपलेले आहेत, किंवा ते कामच करत नाही, किंवा ते डेड आहेत. बाकीच्यांना ते चान्स मिळतो. आणि ते हवेच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये तुमचं जर द्रव्य येत असेल तर ते इमिजिएट त्याला कॅच करा. ओके सर, थँक्यू सर. ओके, अजून कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर सांगा. गुड आफ्टरनून सर, मी डॉक्टर भारती कामत बोलतेय ठाण्यावरनं. सर, माझा एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही म्हणालात की फर्मेंटेशन एक पर्टिक्युलर टाइम नंतर स्टॉप करायला पाहिजे सल्फाइड्स वापरून. पण सर, फर्मेंटेड जे आसोअरिष्ट असतं आपण ते अल्कोहोलसाठी त्याच्या वैविकासी गुणांसाठी तर वापरतोच. पण दे ऑल्सो कंटेन सम मायक्रोबायोम पण असतात त्याच्यामध्ये जे आपल्याला हेल्पफुल असतात. तर मग फर्मेंटेशन प्रोसिजर आपण सल्फाइडने थांबवल्यानंतर तो मायक्रोबायोम जिवंत राहील की काय होईल त्याचं लाईक? त्याच्यात अल्कोहोलचं पर्सेंटेज 12 ते 15% जर झालं तर ते इतर जे काही मायक्रोबायोम्स आहेत ते तसेच इनॅक्टिव्ह होणार. आलं का लक्षात? पण काही ईस्ट या टॉलरेट असतात. तुम्हाला सांगितलं की काही टर्बो ईस्ट असतात ज्यांचा टॉलरन्स हा हाय असतो, आणि तो हाय टॉलरन्स वाल्या जेव्हा ईस्ट त्याच्यात अलाइव्ह असतात त्या पुढे जाऊन फर्दर फर्मेंटेशन सुरू करून प्रॉब्लेम्स क्रिएट करू शकतात. आणि जे आता तुम्ही मायक्रोबायोम्स आहेत, हे गोष्ट जरी खरी असली तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटी घेणारे कॉन्टॅमिनेंट्स असे बॅक्टेरिया, व्हायरसेस म्हणा किंवा फंगाय किंवा बाकीचे जे आहेत हे पण असतात ना. मग ओके सर, आपल्याला आपलं बेसिकली आसवारिष्टाचं परिसीमन किंवा निर्मिती किंवा परिवर्तन हे कशासाठी झालंय की तुमच्या श्वास आणि स्वरसातले जे वीर्य आहे ते सस्टेन होण्यासाठी, दीर्घकाळ टिकण्यासाठी त्याला सेल्फ जनरेटेड अल्कोहोलचे या मेथडनी जोड दिली, हे लक्षात घ्या. आणि ते सेल्फ जनरेटेड अल्कोहोल एक 12% 15%, मॅक्झिमम 14% येऊन स्टेबल होणं. 14% अल्कोहोल असलं तर त्याच्यात बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेस म्हणा किंवा इतर पायरोजेन्स हे जिवंत राहते. राहिलेच तर ईस्ट काही प्रमाणात राहू शकते, कारण ते ईस्ट स्वतःच ते डेव्हलप करत असतात, जनरेट करत असतात अल्कोहोलला. आणि म्हणून त्यांची सस्टेनेबल कॅपॅसिटी किती आहे ते 18% होल्ड करू शकतात, 22% होल्ड करू शकतात स्वतःला. तर त्यामुळे अशा ईस्ट जर त्याच्यात शिल्लक राहिल्या तर त्या पुढे फेवरेबल कंडिशन मध्ये पुन्हा ग्रो होऊन जसं की त्याच्यात परत गॅस तयार व्हायला लागतो असे प्रकार होऊ शकतात. आणि म्हणून हे पूर्वीच्या काळी करत होते, म्हणून ते 3-3 महिने 4-4 महिने आसवरिष्ट पडलेलं राहायचं. त्याचं कारण की ते कम्प्लीट कन्व्हर्शन ऑफ द स्वीट मटेरियल होण्यापर्यंत त्याची वाट पाहावी लागायची. त्यातला सगळा साखरेचा उपयोग हा व्हायचा आणि त्यातही त्याच्या क्षमतेच्याही वरती जर त्याच्यात स्वीटनर असेल तर ते तळाशी तसंच बसलेलं आपल्याला अनेक पाठामध्ये गुळ दिसतो. हा त्याचा एक भाग आहे. गुळाचं सरबत असल्यासारखं ते बऱ्याच दिसतात. म्हणून मग त्या दृष्टीने स्टॉप करण्याचं काय, आज तुम्हाला आसवारिष्ट लोकांच्या हातात द्यायचं आहे
त्यांच्याकडे नेऊन त्यांच्या घरात त्या बाटली जर ब्लास्ट झाली तर ते म्हणतील हे काय प्रकार आहे. आलं का लक्षात? हो सर, हो सर. म्हणून आपल्याला जसं मी सांगितलं की माझ्या अनेक मित्रांनी ही कंप्लेंट केली होती माझ्याबद्दल नाही इतर कंपन्यांची की त्यांची ते आम्ही कॅन मागवल्या त्या आमच्या स्टोरेज मध्येच त्या ब्लास्ट झाल्या आणि सगळ्याच उडून गेलं ते हे. तर त्याचं कारण की इनकम्प्लीट ब्रुईंग होतं आणि ब्रुईंग स्टील गोइंग ऑन. तर आज आपल्याला ते ती फॅसिलिटी आहे की आपल्याला ते स्टॉप करता येईल. नाहीतर ओके, 3-3 महिने ठेवून वाट पाहून मग ते झालं की नाही झालं. पण त्याच्यामध्ये कसं आहे इट्स अ गॅम्बलिंग. ते गॅम्बलिंग आहे. तुमच्या नशिबात सगळं चांगलं जुळलेलं असेल तर ते 3 महिने राहिल्यावर चांगलं राहील. नाहीतर ते वाईल्ड ब्रुईंग. वाईल्ड ब्रुईंगचा रिझल्ट हा काय आहे सांगते. ओके, ओके. थँक्यू सर. सर या थँक्यू. प्रोसेसमध्ये सर या प्रोसेसमध्ये आपल्याला काढा पूर्ण होण्याची 3 महिन्यासाठी वाट बघण्याची गरज नाही का? म्हणजे 3 महिन्यापूर्वी पण आपण वापरात ठेवू शकतो. 3 महिन्याचा कालावधी हा एक जनरल दिलेला आहे ज्याच्यामध्ये शुगर कंटेंट किंवा मधुरद्रव्याचं प्रमाण बरंच असतं. अशा पाठांना काही पाठांना तर 8 दिवसात तुम्ही ओपन करून घ्या सांगितलं, काही पाठास 15 दिवस. म्हणजे 3 दिवसापासून तर 120 दिवसापर्यंत त्याहीपेक्षा जास्त 6-6 महिन्यापर्यंत असा वरिष्ठांचा कालावधी दिला आहे. हा डिपेंड करतो. तर त्यामुळे तुम्हाला आज तुम्हाला बेसिकली काय आहे की तुमचा काढा हा तुम्ही तसाच्या तसा देऊ शकत नाही कारण तो त्याची अविरत अवधी 12 तास 24 तास फ्रीजमध्ये ठेवत आहे. पण त्याला तुम्हाला लॉंग टर्म मध्ये उपयोगात आणण्यासाठी तुम्ही ही त्याला जोड देत आहात असं वरिष्ठामध्ये कन्वर्ट करण्याची. आणि म्हणून मग त्या मेथड मध्ये तुम्हाला त्याची ती प्रोसेस कम्प्लीट झाल्यानंतर त्यामध्ये पर्टिक्युलर लेवल पर्यंत त्या असं आसुतत्व आल्यानंतर त्याला तुम्हाला पुढे काय करायचं आहे त्याला स्टेबल ठेवल्यानंतर त्याच्यातले जे जे ज्याला आपण म्हणतो की रॅकिंग केल्यानंतर जे त्याचे गुण विजय विपाक स्टेबल होतात त्याच्यासाठी तुम्हाला पुढे ते तुम्ही त्यांच्या रॅकमध्ये ठेवलं आणि 6 महिन्यानंतर वापरायला सुरुवात केली तरी चालू शकतं. असं काही नाहीये आणि तुम्ही 15 दिवसांनी वापरायला सुरुवात केली तरी चालू शकतं. ग्रंथात असं दिलेलं आहे 15 दिवसांना त्याला छान गाळून घ्या आणि ते वापरा सकाळ संध्याकाळ इतक्या मात्र इफिशियंट वापरू शकता. ओके, थँक्यू सर. अजून कोणाला काही सर्वांचे शंका निरसन सभी का हो गया. काही कोणाला शंका असतील तर विचारा नाहीतर मग काय करायचं सजेस्ट कंटिन्यू करायची. हॅलो. Hello. Ha, sir. I think all the doubts by the delegates are cleared by you. So thank you very much for your very informative session. Thank you again. Okay, thank you. Can I leave the meeting? Yes. Okay.